Okay, so let me start with the simple MLP with no hidden layers. Right now मैं complicated नहीं करना चाहता, एकदम simple, कोई hidden layers नहीं चाहिए मुझे. Okay, और हम लोग image processing के ऊपर work करना चाहिए. Image processing in the sense right now handwritten digit मुझे classify करते हैं. Okay, handwritten digit. Let us say मेरे पास 55,000 inputs थे. Okay, and मुझे अब कोई भी एक टेस्टिंग पॉइंट पे और रियल टाइम पे मुझे कुछ एक इनपुट देना था एंड मुझे चेक करना था 0 to 9 के इन बिटवीन ये क्या आउटपुट है. So that's actually I have a multi-classified problems with the 10 class labels. Okay, once again classification पे आ जाते हैं. So हम लोग neurons MLP यूज करने वाले, मल्टी लेवल MLP यूज कर रहे हैं हम लोग एंड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम हम यूज करेंगे. एंड हियर we will just use no hidden layers. मतलब complicated नहीं करना चाहते, only inputs are there, only output. Okay, अगर इसको डिजाइन करें then only input is there. So this is my input layer. Okay, this is my input layer and this is the output layer. Okay, this is the output layer. मुझे कोई hidden layer नहीं चाहिए. Fine. So let me start. So this is typical like this is typical imports for the Jupyter notebook. मुझे multiple outputs यहाँ पे चाहिए था तो मैंने simple typical inputs किया. This is Matplotlib library. Now TensorFlow हमने input किया and guys here we just use one thing. That is actually input underscore data. What is that? That is actually input underscore data is nothing but an like class of the TensorFlow. That is just used to read the data set. Okay, काफी टाइम TensorFlow के साथ कोई डेटा सेट हम लोग को नहीं मिलता, जैसे like हैंड रिटन डिजिट्स है वो हमारे पास TensorFlow के साथ अवेलेबल है. The digits are not available with the TensorFlow. तो मुझे इसको अलग से डाउनलोड करना था and that is available in this MNIST data. ओके, MNIST डेटा के पास वो अवेलेबल था, तो मुझे उसको डाउनलोड करना था. मैन्युअली आई डोंट नॉट वांट टू डाउनलोड, मुझे वेबसाइट पे जाके वहां से डाउनलोड नहीं करना. तो मैं TensorFlow को बोल रहा हूँ, TensorFlow प्लीज डाउनलोड दैट फॉर मी. So TensorFlow having actually a class that is actually input underscore data, you can just use this thing input underscore data and like it's called the function read data set. Okay, what I did, मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी पास किया, एक डायरेक्टरी मैंने पास किया हुआ कि प्लीज रीड द डेटा फ्रॉम हियर. अगर डेटा यहाँ पे नहीं मिला देन इट विल ऑटोमेटिकली डाउनलोड. अगर डेटा यहाँ पे नहीं मिला then it will download from the website. Okay, it will automatically download. We have not to worry about it. But where is this input underscore data class is? So TensorFlow.examples.tutorial.mnist. So what is that? Actually TensorFlow को explain करने के लिए उन लोगों ने TensorFlow को समझाने के लिए काफी सारे examples दे रखे हैं. उसमें से एक example हम ले रहे हैं. तो उसको समझाने के लिए उन्होंने actually MNIST नाम का डेटा सेट यूज किया था. ओके, MNIST नाम का डेटा सेट उन्होंने वहाँ पे यूज किया हुआ है. सो मैंने वही लाइब्रेरी उसका ही पाथ ले लिया एंड आई जस्ट यूज इनपुट अंडरस्कोर डेटा. सो इफ MNIST इज नॉट अवेलेबल इन योर मशीन इट विल डाउनलोड. ओके, 5,000 rows है, be careful, 65,000 records with actually 784 columns. So एक बार डाउनलोड करके उसको सेव कर देना है. फाइन. So what I did, मैंने सिर्फ डायरेक्टरी पास की and here we just provide a directory value to this read underscore data set function. It will download all. And download कैसे करेगा? It will just create 4 different files. Okay, 2 for training, 2 for testing. So but obviously we know actually training time पे हमारे पास data feature value and labeled value ऐसे divided होना चाहिए. Feature value in the sense input data and labeled in the sense class value. So here is just download the data as per actually feature and label. So ये दोनों training data थे, training underscore images, training underscore label. Training underscore images, training underscore label. This is for actually testing. So images and label. Fine. So मुझे इस data set का shape चाहिए था कि भाई like what is the shape actually. So what I did, मैंने इस data set को store किया MNIST में. So I just write down MNIST.train dot images. What is that images and label? That's nothing but a images and label. That's nothing but a file name. वो खुद ने उसने divide करके दिया. Okay, ये function खुद उसको 2 पार्ट में divide कर रहा है, training and testing. और उसमें मेरे पास फीचर्स था, फीचर्स को मैंने इमेजेस बोला हुआ है एंड जो आउटपुट था दैट इज एक्चुअली नोन एज लेवल. सो इट जस्ट से 55,000 मतलब रिकॉर्ड एंड 74 दैट्स एक्चुअली शेप. सो 55,000 रिकॉर्ड्स विद 784 कॉलम्स फीचर. ओके, 55,000 रिकॉर्ड्स विद एक्चुअली 784 कॉलम्स. ओके, सो हियर ट्रेनिंग इन द सेंस दैट इज द लाइक डेटा सेट जो हम लोग ट्रेनिंग टाइम पे यूज करेंगे. एक्चुअली TensorFlow को एक्सप्लेन करने के लिए उन लोगों ने समझा, उनके एग्जांपल्स में उन्होंने इसको ट्रेनिंग सेट में यूज किया. एंड टेस्टिंग के लिए 10,000 रिकॉर्ड्स. तो टोटल कितने रिकॉर्ड्स हुए मेरे पास? 65,000 रिकॉर्ड्स. ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस 10? सो ये लेबल्स देता है. जस्ट चेक, दिस इज द लेबल डेटा. इन द सेंस 10 लेबल्स आते हैं, 10 डिफरेंट लेबल्स आते हैं. ओके, सो एज वी नो हैंड रिटन डिजिट्स में डिजिट्स क्या हो गए? 0 to 9. अगर मैं किसी को बोलूँ कि 15 इज देयर बट उसमें भी 1 और 5 का कॉम्बिनेशन ही होगा, तो डिजिट में होगा क्या? 0 to 9.
So 10 different class labels are there. Now what about this one hot equals to true? What is that one hot? So right now as per this data set हम लोग इतना कुछ मान सकते हैं कि अगर मैं एक इनपुट लेयर यूज करूं, कंसीडर दिस इज माय इनपुट लेयर and this is my actually output layer, or you can say that yeah, that is output layer. So output layer में मेरे पास कितने perceptrons होंगे, कितने न्यूरॉन्स होंगे मेरे पास आउटपुट लेयर में? But obviously we will have 10 neurons. यहाँ पे 10 न्यूरॉन्स होंगे. इनपुट कितने होंगे? yes, इनपुट कितने होंगे? This is your data set. इनपुट कितना होगा? विजय सर, मौलिक सर, इनपुट लेयर में क्या ऑलवेज हम क्या पास करते हैं? हम लोग ऑलवेज फीचर वैल्यू पास करते हैं. तो यहाँ पे इनपुट में क्या होगा? 784. ओके, 784 विल बी द इनपुट. एक रिकॉर्ड के लिए 784. ऐसे इटरेशन कितने टाइम चलाना है? अगर मैं 55,000 रिकॉर्ड्स कंसीडर करूं तो मुझे इटरेशन चलाना है, मतलब लूप एग्जीक्यूट करना है 55,000. सभी रिकॉर्ड के लिए अगर हम वर्क करें तो 55,000 टाइम मुझे क्या करना होगा? 784 इनपुट दो एक रिकॉर्ड के लिए, सिंगल रिकॉर्ड के लिए. तो 784 रिकॉर्ड मतलब इनपुट दो, आपको 10 में से कोई एक आउटपुट मिलेगा. एक्चुअली इट रिटर्न्स 10 आउटपुट्स. वो 10 आउटपुट्स आपको रिटर्न करेगा, बट उसमें से एक वैल्यू, मतलब जैसे 0 to 9 में से कोई एक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी एकदम नजदीक हो. लेट अस से 5, तो 5 के लिए 0.6 या 0.7 ऐसा कुछ मिला. बाकी सब में एक्चुअली पॉइंट में डिवाइडेड हुआ. देन आई कैन से देते हैं ओके एक्चुअल आउटपुट इज 5, प्रेडिक्टेड आउटपुट इज 5. इज इट क्लियर गाइस? ये समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? 10 न्यूरॉन्स क्यों? बिकॉज आई नीड 10 आउटपुट्स. 10 आउटपुट्स मुझे चाहिए थे, तो 10 न्यूरॉन्स. एंड व्हाट अबाउट दिस 784? दैट दिस इज द फीचर वैल्यू. ओके, एक रिकॉर्ड के लिए पहले मुझे इनपुट करना था. 784 विल बी द फीचर वैल्यू. यस मौलिक सर. सर ये 784 तो कॉलम हुई ना? हाँ, वही फीचर वैल्यू मतलब कॉलम. ओके, तो एट अ टाइम सर हम एक रो पास करेंगे ना कि कॉलम? हाँ सर, एक रो पास करेंगे. एक रो पास करेंगे तो उसमें कॉलम्स कितने होंगे? 784. ओके, समझ गया. 784 कॉलम्स हम पास करेंगे तो एक रो. अब देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं तो हम लोग 4 कॉलम्स बना देते हैं, x1, x2, x3 और x4. तो सामने हमारे पास क्या होगा? y भी हो गई. व्हाट इज दैट y? बिकॉज हम लोग सुपरवाइज मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं. दैट मीन्स y इन द सेंस लेबल्ड वैल्यू. ठीक है, तो मुझे ये 4 वैल्यू पास करके y का वैल्यू प्रेडिक्ट कराना था. बट y की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? अगर मैं ऐसे बोलूं y की पॉसिबल वैल्यू 0 to 9 है, मतलब टोटल कितने पॉसिबल वैल्यूज है? 10 पॉसिबल वैल्यूज आते हैं. इसलिए मेरे पास आउटपुट में 10 न्यूरॉन्स है. ओके, तो कोई एक मैंने रिकॉर्ड इनपुट किया विद 784 फीचर्स, इसमें 10 आउटपुट्स आ रहे हैं. तो हो सकता है कि पहले ने बोला 5, तीसरे ने बोला 6 एंड समथिंग लाइक दैट. तो मुझे ये 10 आउटपुट्स का प्रोबेबिलिटी में डिवाइड करना है. देन गाइस हम लोग ये लर्न कर चुके हैं, मुझे यहाँ पे सॉफ्टमैक्स ऐड करना पड़ेगा. सो व्हाट सॉफ्टमैक्स विल डू? सॉफ्टमैक्स मुझे क्या करके देगा? इट जस्ट एक्चुअली सम ऑफ ऑल दिस आउटपुट और उसको प्रोबेबिलिटी में डिवाइड करके देगा. ओके, मतलब अगर मान लो मेरा आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा था, लाइक 10 डिफरेंट आउटपुट्स की जगह मैं 5 आउटपुट्स ले रहा हूँ. 10, 15, 24, 78 एंड लाइक 23 ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा था. तो उसको प्रोबेबिलिटी में डिवाइड करके देगा. 0.1, then 0.2, then let us say 0.4, otherwise let us say 0.28, then 0.78 को उसको बोल देते हैं हम लोग not the 0.7, actually 0.7 नहीं बोल सकते, 0.6 अप्रोक्सीमेट मान के चलिए 0.6 and finally 0.20 like the 0.29. ओके, इसको 0.6 की जगह मैं 0.5 मान देता हूँ. देखो सम ऑफ इनका सबका सम 1 आना चाहिए. ओके, अभी राइट ना 1 नहीं आएगा, बट मान के चलिए इसका सम 1 आएगा. ओके, सो मुझे प्रोबेबिलिटी में डिवाइड करके कौन देगा? माय सॉफ्टमैक्स एल्गोरिथम विल डिवाइड दिस आउटपुट इन ए प्रोबेबिलिटी. ओके, वो उसको प्रोबेबिलिटी में डिवाइड करके देगा. सो इजीली आई कैन जस्ट कंपेयर दैट 0.55 is a maximum probability, so it will be the outcome. Maybe it will be the outcome. Okay, that's a predicted value. तो हम लोग इसके बाद आउटपुट लेयर के बाद एक सॉफ्टमैक्स ऐड करेंगे. आउटपुट लेयर के बाद एक सॉफ्टमैक्स ऐड करेंगे. बिकॉज एक या 2 आउटपुट होते तो मैं बोल सकता 0 और 1. ओके, बट अगर मेरे पास 10 आउटपुट्स है, then we need some guy जो probability में convert करके दे, मेरे आउटपुट को probability में convert करके दे. Because manually I do not want to convert these outputs in a probability value. क्योंकि सबका सम करो, उन सबको सम को उससे डिवाइड करो. आपको याद हो तो हम लोगों ने e⁻² वाला फॉर्मूला यूज किया था. ठीक है, so like सॉफ्टमैक्स का फॉर्मूला था e⁻WIXi divided by sum of e⁻WIXi. ओके, डिवाइड में सम था.
ऊपर e raised to WIXI. So that's that. I hope that is clear, guys. Maulik sir, Vijay sir, is it fine? So we will add one software. So Yes. this is my input layer, Yes. this is my output layer, and we will add actually software also. So fine, this is the data set. But guys, अगर मुझे यहाँ पे input करना है, so how many weights is required actually? हम लोग के यहाँ पे like perceptron या MLP की बात करें तो हमारे पास algorithm में एक integration function था, and we have one like activation function. So integration function था WIXI. So if this is the value of X, तो मुझे W कितने चाहिए होंगे? How many W's be required? W कितने चाहिए होंगे? 784. सर रिकॉल करिए. ओके, एक और बार डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, ये मेरे इनपुट है, मान लीजिए 2 मेरे इनपुट है. ओके, 2 इनपुट है मेरे पास एंड 3 परसेप्ट्रॉन, मतलब सॉरी द परसेप्ट्रॉन 3 न्यूरॉन्स है. ओके, 3 न्यूरॉन्स आई हैव. सो दिस इज द फर्स्ट न्यूरॉन, दिस इज द सेकंड न्यूरॉन, दिस इज द थर्ड. ओके, नाउ लेट अस से मुझे इस फर्स्ट एक्स से मुझे ये न्यूरॉन में वैल्यू पास करनी है. तो कितनी वैल्यूज पास करनी होगी? यहाँ से वैल्यू पास करनी है. हियर आई वांट टू पास सम वैल्यूज, हियर आई वांट टू पास सम वैल्यूज. ओके, एंड फ्रॉम हियर आल्सो आई वांट टू जस्ट पास सम वैल्यूज. यहाँ से एक वैल्यू पास होगी, हियर इट विल पास द वैल्यू, हियर इट विल पास द वैल्यू. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, बट मुझे डब्ल्यूज भी चाहिए होंगे. तो ये एक्चुअली लाइन जो है वो डब्ल्यूज है. एक्स तो मेरे पास 2 ही थे. हाउ मेनी एक्स आर देयर? ओनली x1 एंड x2. ओके, हाउ मेनी न्यूरॉन्स आर देयर? सो न्यूरॉन 1, न्यूरॉन 2, न्यूरॉन 3. डब्ल्यू कितने चाहिए होंगे गाइस? 6. 6 मतलब 2 into 3. Yes. Okay, 2 into 3, 6 neurons, sorry 6 W's by required. So यहाँ पे कितने मुझे W's चाहिए? 7840. 784 multiplied by 10, it will be 7840. What about the bias value? Bias value कितनी चाहिए? Bias value actually that you can consider bias is nothing but one more x. Bias का मतलब हम लोग ऐसे consider करते थे कि एक और x value. So bias in the sense one more x is. तो सब में एक इनपुट पास है. So it just input over here, एक इनपुट यहाँ पे होगा, एक इनपुट यहाँ पे होगा. So bias का वैल्यू मान लो मैं 1 फिक्स कर देता हूँ. bias का वैल्यू जनरली हम 1 फिक्स कर देते हैं. But W's we have to add for bias. कितने bias चाहिए होंगे? कितने न्यूरॉन उतने bias? कितने न्यूरॉन उतने bias? So we require 10 bias. Okay, so 10 bias values we require. Okay, so finally how many weights we have to pass? So 7840 plus 10 is equals to 7850. This much of weights we have to pass. And guys, अगर आपको optimized way में work करना है, finally आपको loss function में value, मतलब ज़्यादा loss नहीं चाहिए, accuracy, improved accuracy चाहिए, then आपको 7850 values को optimized करना पड़ेगा, मतलब retrain करना पड़ेगा. 7850 weights को train करना पड़ेगा. So हम लोग अब simple सा equation है. मेरे पास इंटीग्रेशन फंक्शन के लिए इक्वेशन था WIXI. ओके, WIXI, दिस इज माय फंक्शन. अब मुझे ये बताए W और X में से प्लेस होल्डर कौन होगा, कांस्टेंट कौन होगा और वेरिएबल कौन होगा. ये मेरा इक्वेशन है WIXI. WIXI में कांस्टेंट कौन होगा, प्लेस होल्डर कौन होगा, वेरिएबल कौन होगा. So variable W होगा. हाँ, यस सॉरी, Variable W होगा. यस W को ट्रेन करना है, so W will be the variable. What about X? X variable होगा. X की वैल्यू प्लेस होल्डर होगा सर, वो प्लेस होल्डर. हाँ प्लेस होल्डर क्योंकि उसकी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं. ठीक है, और I तो इक्वेशन हो गया. पहले वाले मतलब ये कितने टाइम मुझे चलाना है, मेरे पास 55,000 रिकॉर्ड्स है. सो दैट विल बी इटरेशन वैल्यू. सो I का वैल्यू 1 से लेके 55,000 तक है. ओके, बट मेरे मशीन में इतना पावर नहीं, मैं 55,000 तक चलूँ. सो व्हाट आई विल डू, मैं इसमें से सैंपल 100 डेटा ले लूंगा, 200 डेटा ले लूंगा, 100 और 200 टू ट्रेन माय मशीन. ओके, देन टेस्टिंग के टाइम 10 और 50, बिकॉज इन्होंने तो काफी बड़ा डेटा सेट दिया है. ट्रेनिंग के टाइम 55,000, टेस्टिंग के टाइम 10,000. सो आई होप अप टू दिस इज इट डन. सो नाउ W मुझे पता चल गया, दैट विल बी माय वेरिएबल. मुझे X पता चल गया, दैट विल बी माय प्लेस होल्डर. दैट विल बी माय प्लेस होल्डर. So let me start. And what about this D? What about this D? D क्या होगा, right? Constant. नहीं sir, bias value भी update होती है. Variable. Okay. It also be variable. Okay, it also be a variable. So now उससे पहले data set का थोड़ा सा और idea ले लेते हैं.
So here what I can do, what I did actually, मैंने generate image नाम का एक function बनाया जिसमें मैं actually MD array pass करूँगा. So finally ये सब के सब MD array का data है. Okay, so like mnist is my data set. It's my data set name mnist. So हमने यहाँ पे लिखा mnist dot test. Okay, train and test 2 parts आते हैं. उसमें images of 0. तो first value मैंने लिया और उसको generate image को pass किया. And in a similar way, actually, it just return a PLT. वो मुझे float return करेगा, उसको हमने show किया. उसी तरीके से images of 1, testing का images of 1 लिया, उसी तरीके से labels को print किया. So it just say 7 and 2, and label value को print करा, it just say oh 7 and 2 is here. So what's that? अब ये क्या है भाई? यहाँ पे 0 0 0 0 क्यों दिया? Because what I did, जब data set read किया था, तब हमने यहाँ लिखा था 1_hot equals to 2. So what is that 1_hot equals to true? So इसका मतलब total how many labels you have? Sir, we have 10 labels. We have 10 labels in our data set. Testing के time और training के time labels की value देखें, then we have 10 labels. Just take 10 labels we have. So ये 10 labels में मुझे ऐसा करना था कि जहाँ पे actually labeled value वहाँ पे 1 रख, remaining will be 0. So that is actually known as one-hot true. That is actually one-hot true. तो अगर मान लो मैं label of 0 की value print करूँ and label of 0 is nothing but a 7, so 7 से पहले 6 zeros होंगे. Okay, 6 zeros होंगे, then 7 and then 0. Not 6 zeros, that is actually ये 0 से start हुआ था 0 to 9. Digits मेरे है 0 to 9. So 7 it will be on 8th position. तो यहाँ पे 1 remaining 0. This is 2. So second position, actually third position. Third position पे 1 remaining will be 0. Is it fine, guys? And what we did here, हमने यहाँ पे क्या काम काज किया इमेज को डिस्प्ले करने के टाइम हमने एक्चुअली reshape नाम का फंक्शन कॉल किया ensure that is from ND array. So sorry, that is from numpy. So np dot reshape and जो भी array पास हुआ था उसको 28 by 28 में कन्वर्ट किया. By default it is 28 by 28. Okay, 28 by 28. Image अगर मैं print करूँ, so let me just print 28 by 28. So that's actually 784. Just check. That is actually 784. Programmer की जगह standard ले लेता हूँ. So 28 by 28, that is actually 784. Okay, so actually अगर आप image की बात करो, then but obvious image always matrix format में होता है. But यह matrix को flatten किया हुआ है. Flatten मतलब 2-dimensional matrix को 1D में convert किया, so that 784 columns are there. MNIST data से हम पहले भी discuss कर चुके हैं. ठीक है, so 784 columns are there. तो उसको मैंने उस column को मैंने reshape किया, because it's a 1D array. अब देखो कोई भी डेटा को लोगे तो 1D array, कोई भी रो को आप पेस्ट करोगे, that is 1D array. ओके, तो उसको हमने पहले reshape किया 28 by 28 में, and then हमने उसको return किया, उसको I am show करके हमने उसको return. So what about this 255? So guys, by default this is grayscale image. By default जब data set read करोगे तो वो grayscale image था. So multiplied by 255 करने का मतलब मैंने उसको RGB में convert किया. Okay, RGB कलर में convert किया. So is this clear, guys? Generate image is clear? कोई लॉजिकल चीज नहीं है, सिर्फ फंक्शंस कॉल करना है. ओके, और u8 मतलब क्या? दैट इज लाइक अनसाइन इंटीजर 1 बाइट, बिकॉज हमको पता है कि लाइक इमेज की वैल्यू 0 से 255 के बीच में होगा, पिक्सल की वैल्यू. सो इसलिए उसको अनसाइन में कन्वर्ट किया. बाय डिफॉल्ट वो फ्लोट देता, रिशेप एक्चुअली मुझे फ्लोट देता, तो उसको मैंने अनसाइन इंटीजर में, और वो भी 1 बाइट में कन्वर्ट किया, तो ज्यादा मेमोरी कंज्यूम. एंड इट जस्ट लाइक सिर्फ डेटाबेस से फेमिलियर हो गया. सो अप टू दिस आई होप नो प्रॉब्लम. Now this is the actual thing. So let me just create a placeholder. So placeholder मुझे क्या चाहिए? Placeholder मतलब this is my x. X की वैल्यू में इनपुट करने वाला हूँ, but it must be a 2-dimensional array. Okay, let me just take this thing. X का वैल्यू में इनपुट करूँगा. So as we discussed from this one, this x will be a placeholder. Okay, so x का वैल्यू में इनपुट करूँगा. So what will be the dimension of x? Sir, maybe it's a 55,000 multiplied by 784. But मुझे 55,000 records नहीं चाहिए. 784 columns I have to pass, but 55,000 records I do not want to use actually. So मैंने लिखा none comma 784. Okay, dimension पहला dimension नहीं दिया, so in future we can pass the dimension. But actually मैंने 2-dimensional fix कर दिया. Okay, so placeholder मतलब just accept the input from the user. What about W and what about B? So W will be 784 by 10. B will be only 10. Okay, उसमें dimension only 10 होगा. So B and W मुझे learn करने, तो that's a variable. It's a variable. Okay, that is a variable. So what is W? W is actually 784 by 10. Why 784 by 10? 10 by 784 क्यों नहीं? 784 by 10 क्यों guys? 10 by 784 भी लिख सकते हैं? नहीं, we cannot write down because matrix multiplication में rule है. अगर आप दो मैट्रिक्स का multiplication करते हो, so let I say this is my first matrix and this is my second matrix.
ओके, तो फर्स्ट मैट्रिक्स मान के चलिए 3/3 है, फर्स्ट मैट्रिक्स मान के चलिए 3/3 है, एंड सेकंड मैट्रिक्स इज द साइज ऑफ एक्चुअली 3/1. So sorry, 1, okay, that was my mistake actually. मैं 1/3 ले लेता हूँ. The second matrix size is actually 1/3. Yes, fine. One row, 3 columns. One row, 3 columns. Then it's fine. It will work. मतलब ये लास्ट वाला डायमेंशन सेम होना चाहिए. Okay, लास्ट वाला डायमेंशन सेम होना चाहिए. 3/3 and 1/3. And the resultant will be 3/3. The resultant will be 3/3. Okay, sorry, resultant will be 3/1 actually. Sorry, resultant will be 3/1. So matrix multiplication में जाना है, then you have to just be careful. Last वाला dimension दोनों का same होना चाहिए. Sorry, once again I just did a mistake. Sir, हाँ 3/1 होना चाहिए. 3/1 होना चाहिए. इसका last इसका first ये match होना चाहिए. इसका last इसका first ये match होना चाहिए, and result ये आएगा 3 and this one 1. Is it done, Vijay sir? Yes sir. Yes. इसका नंबर ऑफ रोज, इसका नंबर ऑफ कॉलम, मतलब पहले का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे का नंबर ऑफ रोज, ये सेम होना चाहिए. सो व्हाट आई वांट टू डू हियर, मेरे पास इनपुट फिक्स था, एक्स फिक्स था, एंड मुझे करना क्या था, मेरा फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो हम लोग लाइक अगर यहाँ परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम याद करें, सो 1 मिनट. ओके, परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम अगर हम लोग याद करें तो इंटीग्रेशन फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके से था. इंटीग्रेशन फंक्शन इज एक्चुअली wx plus b, ऐसा कुछ फंक्शन हम लोग यूज कर रहे थे, wx plus b. सो w और x का मल्टीप्लिकेशन करना था. नाउ x इज फाइनल, x फाइनल हो गया कि भाई उसमें 784 कॉलम्स होने वाले. भाई नंबर ऑफ रोज मुझे नहीं पता, बट 784 कॉलम्स होंगे. तो w का क्या होना चाहिए सर, w में एटलीस्ट 784 कॉलम्स होने चाहिए. 784 कॉलम्स होने चाहिए, रो का मुझे नहीं पता, सॉरी 784 रोज होने चाहिए. मतलब इसका लास्ट डायमेंशन और इसका फर्स्ट डायमेंशन मैच होना चाहिए. Okay, and this 10 is fixed actually. Fine. So ये number of rows मुझे नहीं पता, number of rows में कितने इनपुट करो मुझे नहीं पता, but W का साइज फिक्स होगा 784/10, but 784 पहले लिखना पड़ेगा. Okay, so 784/10. Is it clear guys? And B will be 10. Why 10? Because इसका जो resultant आने वाला है, resultant जो आएगा उसमें actually like 10 rows होंगे. Okay, so उसको 10 के साथ हम लोग addition करा सकते हैं. So W will be 10. So now this is variable, this is placeholder because मुझे W और B को tune करना है. And my final Y is actually Y in the sense what? That is actually predicted value. Integration function. Matrix multiplication, W and X plus B. So that's that. Now we can just tune the value. Okay, अब इसको मुझे रन करना होगा तो मुझे सेशन क्रिएट करना है, और सेशन क्रिएट करने के टाइम में एक्चुअली X का वैल्यू पुट करूंगा, बट उससे पहले मैं W और B इनिशिएट कुछ ना कुछ इनिशिएट करना पड़ेगा. So fine, that is actually NLP. But as we discussed, by NLP simple use नहीं करेंगे, we will just add the softmax also. मुझे softmax पे add करना है. So for the softmax, actually we have to just go with cross entropy. We just discussed that. Cross entropy is nothing but a like softmax के लिए cross entropy क्या है? It is actually loss function. The softmax x का like softmax add करने के बाद softmax मुझे probability देगा, and उस probability में कितना match हुआ, actual value और softmax में कितना match हुआ. सॉफ्टमैक्स के बाद जो आउटपुट आएगा, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट यूजिंग द एक्चुअल आउटपुट, मैं अपने आउटपुट लेयर का आउटपुट यूज नहीं कर रहा, मैं सॉफ्टमैक्स का आउटपुट यूज कर रहा हूँ. तो जैसे हमारे पास लॉस फंक्शन था, वैसे हमारे पास क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन है. तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वो चेक कर लेगा, जिसकी वैल्यू एक्चुअली नियर अबाउट होगी उसको अकॉर्डिंग टू दैट मुझे लाइक लॉस रिटर्न करेगा. सो फाइन, व्हाट अबाउट दिस y अंडरस्कोर? सो दैट इज आल्सो माय प्लेस होल्डर. व्हाट इज दैट गाइस? दैट इज एक्चुअल वैल्यू. जैसे x एक्चुअल वैल्यू थी, y की एक्चुअल वैल्यू, लेबल्ड वैल्यू. तो उसकी वैल्यू क्या होगी? नन ऑफ 10. वाई नन ऑफ 10? बिकॉज 10 कॉलम्स आर फिक्स. रो वो तो इनपुट कितना करे उसके ऊपर डिपेंड करता है. यहाँ दोनों से सेम होगी, एक्स की और वाई की वैल्यू. ओके, नाउ लेट मी जस्ट यूज दिस सॉफ्ट क्रॉस एंट्रोपी. सॉफ्ट क्रॉस एंट्रोपी विथ एक्चुअली लॉजिस्टिक, सॉरी विथ एक्चुअली लॉटिक्स. एंड मुझे यहाँ पे कौन सी वैल्यू देनी है? तो मुझे यहाँ पे वैल्यू देनी थी एक्चुअली मेरा एक्चुअली लाइक लेबल्ड वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू. So labeled value is actually labeled value मतलब original value, that is y underscore, and y is actual value. तो उन दोनों का वैल्यू के हिसाब से मुझे वो प्रोबेबिलिटी वैल्यू फाइंड आउट करके एरर जनरेट करके देगा. उस एरर का मैं एक्चुअली किट लाइक मुझे 10 एरर मिलेगी ना, 10 एरर मिलेगी, उनका एक्चुअली मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, मीन वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ. मीन वैल्यू फाइंड आउट करके
हम उसका क्रॉस एंट्रोपी, उसको हमने क्रॉस एंट्रोपी के नाम से स्टोर किया. नाउ फाइनली लेट मी क्रिएट ए मॉडल. तो लास्ट सेशन में भी हमने ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर यूज किया था विद लर्निंग पैरामीटर 0.1. हियर वी आर यूजिंग एक्चुअली 0.5 as a learning parameter. Here we are using 0.5 as a learning parameter. It returns and model or optimizer it returns. और इसमें हम लोग उसको मिनिमाइज नाम का फंक्शन कॉल करके बोल रहे हैं भाई मुझे इसको मिनिमाइज करना है, मुझे इसको मिनिमाइज करना है, जस्ट रिटर्न फ्रेम्स. ओके, नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज फाइनली सेशन क्रिएट करते, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कराते. सो फॉर दैट लाइक ग्लोबल वैल्यू इनिशियलाइजर को रन कर देंगे. सो इट विल बी इनिशियलाइज्ड विद द डिफॉल्ट वैल्यूज. हमने यहाँ जीरोज रखा है, ओके, बिकॉज मुझे नहीं पता था वैल्यू क्या रखो, मैंने बाय डिफॉल्ट जीरो रखा. तो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया एंड नाउ 1000 टाइम्स हम लूप चलाएंगे. एंड गाइस मैं हर एक टाइम 100 वैल्यूज फेच करूँ, मुझे 55,000 वैल्यूज नहीं लेते. तो हम लोग आपको याद हो तो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि और अपने एल्गोरिदम को कंप्यूटेशनल पावर, मतलब हमारे पास अगर कंप्यूटेशनल पावर नहीं है एंड अपने एल्गोरिदम को स्पीडी बनाना तो क्या करेंगे? सो हम लोग 100 वैल्यूज के बाद वेट को अपडेट करेंगे, अदरवाइज 100 वैल्यूज को फेच करके काम करें. सो व्हाट आई डिड, मैंने एक्चुअली बैच वैल्यू फाइंड आउट की बाय यूजिंग द mlist.train. उसमें से मैंने एक्चुअली बैच वैल्यू लिया 100 का, तो मुझे वो दो वैल्यू देगा, लाइक 100 रिकॉर्ड्स एंड 100 लेबल वैल्यू. ओके, 100 रिकॉर्ड्स एंड 100 लेबल. सो मेरा x का वैल्यू दैट इज फीचर वैल्यू, दैट इज एक्चुअली लेबल वैल्यू. अब ये दोनों वैल्यू को एज ए लाइक स्ट्रिट डिक्शनरी में मैं यूज कर रहा हूँ. सो x इक्वल्स टू batch underscore access and y underscore equals to actually batch underscore y. तो ये मेरा एक लेबल वैल्यू हो गया, ये एक्चुअल वैल्यू. ओके, ट्रेन किसको कर रहे हैं? दिस ट्रेन से. अब वो y का वैल्यू प्रेडिक्ट करेगा, y का वैल्यू प्रेडिक्ट करेगा, y अंडरस्कोर हम लोग पास कर चुके हैं, y अंडरस्कोर पास कर चुके हैं ना. उसको रन करोगे देन इट रिटर्न्स एक्चुअली एरर. ओके, सो एरर मतलब वो एरर रिटर्न करेगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो अपने वेरिएबल्स को ट्यून करेगा. व्हाट आर द वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर नथिंग बट एन WLB. तो इस वेरिएबल को ट्यून करेगा. फाइन. सो फाइनली इसके बाद हम लोग W और B की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W और B? फाइनली मुझे एक्यूरेसी चाहिए थी, मुझे W और B में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे एक्यूरेसी चाहिए थी. सो व्हाट आई डिड, मुझे अब देखना था कि भाई एक्यूरेसी मतलब लाइक अब टेस्टिंग कर रहे हैं. फॉर द टेस्टिंग टाइम व्हाट आई एम डूइंग, तो मैंने लिखा tf.argmax y,1 tf.argmax y underscore comma. व्हाट इज दैट y अंडरस्कोर? अभी वन सेकंड में एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, एक और ट्री बना रहा हूँ, एक और ग्राफ बना रहे हैं. नॉट द वेरिएबल, एक ग्राफ बना रहे हैं. So y underscore in the sense what? That's my actually labeled data. Labeled data. What about y? That is the predicted value. That is predicted value. What we are doing actually argmax in the sense what? अब हम लोग softmax अगर use करते हैं तो अपने outcome को वो actually probability में divide करता है. 0.5, 0.7, 0.9 something like that. तो मुझे ऐसा करना था कि भाई मुझे उसका इंडेक्स वैल्यू दे जो नियर अबाउट 1. नियर अबाउट 1 बिकॉज 1 मतलब जो मैच हो रहा है. बिकॉज हम लोगों ने पहले से ही hot underscore true equals to सॉरी लाइक हमने यहाँ पे पहले डेटा लीड किया तो 1 हॉट को ट्रू किया था. 1 हॉट को ट्रू करने का मतलब क्या हुआ? लाइक अगर मान लो द लेबल वैल्यू 7, जैसे कि यहाँ पे 7 था इस इमेज के हिसाब से, लेबल वैल्यू 7 था तो 8 पोजीशन पे 1 होगा. ओके, 8 पोजीशन पे 1 होगा तो मुझे 1 चाहिए. तो प्रेडिक्शन में 1 चाहिए एंड ओरिजिनल में 1 चाहिए. तो हम लोगों ने उसका इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट किया tf.argmax. argmax विल रिटर्न एक्चुअली इंडेक्स वैल्यू, बट उसको पहले नियर अबाउट 1 करेगा. तो एक्चुअल वैल्यू और सॉरी दिस इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में से 1 फाइंड आउट किया, उसका इंडेक्स वैल्यू लिया और उसको इक्वलाइज किया, दोनों को इक्वल किया. इफ इट इज सेम और नॉट वो मेरा करेक्ट प्रेडिक्शन है. सो नाउ करेक्ट प्रेडिक्शन कितना आएगा? सर वो टेस्टिंग में अगर आप 1000 एलिमेंट इनपुट कर रहे हो देन करेक्ट प्रेडिक्शन की वैल्यू 1000 लाइक वेक्टर होगा 1000 की साइज का. अगर आपने 500 वैल्यूज इनपुट की देन 500 की साइज का वेक्टर होगा. सो व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? अब उस वेक्टर में होगा क्या? द ट्रू और फॉल्स. वो ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए, मुझे मिन वैल्यू निकालनी थी, तभी तो मुझे एक्यूरेसी मिलेगी. तो मैंने क्या किया, उसको कास्ट किया, करेक्ट प्रेडिक्शन को फ्लोट 32 में टाइप कास्ट किया एंड उसको हमने मिन वैल्यू लिया, रिड्यूस अंडरस्कोर मीन. सो दैट इज माय एक्यूरेसी. दैट इज माय एक्यूरेसी. ओके, सो एक्यूरेसी की मुझे वैल्यू चाहिए, तब मैं एक्चुअली टेस्ट अंडरस्कोर इमेजेस एंड टेस्ट लेबल्स ये दोनों पुट कर रहा हूँ. टेस्ट इमेजेस दैट इज माय एक्चुअली फीचर्ड वैल्यू and test labels that is actually outcome. This is written, okay, 0.91, 0.83 is your label. Sorry, that is actually accuracy. That is an accuracy.